Assalamu alaikum ji. This is Shahzad Shahid and I am part of Pasha, the ex-chairman of Pasha till last year and now serving in the executive committee of Pasha. And I'm part of the IT sector for the past over 10 years, running, an IT company into financial services called TPS, which is a company in Pakistan, headquartered since 1996. Have both domestic, IT as well as exports. And today topic is about, the tax credit regime or the tax credit system that has been introduced by government. I would say all of a sudden, in the middle of the year, that has taken effect since 22nd of March 2021, even ahead of the new financial year, which is set to go from 1st of July 2021. And this has actually replaced the tax holiday that the IT sector had been enjoying. And the window was supposed to expire on 30th June 2025. So this is, 3.5 or rather 3 years and 9 months ahead of time. This tax holiday system has been replaced with the tax credit system that we are believes that it has actually no tax implication on any of the exporters. We will certainly discuss it and understand it from our very knowledgeable panelists. I'll start. So we have three panelists today. Sadia Nazir Saiba. Sadia Nazir Saiba is a partner at KPMG and specialize in tax laws. We have Sharifuddin Khilji Saab. He is the CEO and founder of Khilji and Co, which is also into tax advisory and has been associated with the IT sector and Pasha for some time now. We have a very seasoned IT stalwart Nasir Akhtar Saab with us, who actually has seen the ups and downs of our economy, policies, consistency or lack of it, and has been a very vocal person from the IT sector, Nazisa. So we have a good mix of people Assalamualaikum. today. Assalamu alaikum to everybody. We will start with a quick introduction, starting with, like this ladies first, Sadia, then Sharif Saab, and then Nazisa, before we start on the matter itself. Ji Sadia. Thank you very much, Azad. Let me introduce myself. I'm Sadia. I'm partner tax in KPMG, and I have been with the firm for over 21 years now. And since 2003, I've been looking after corporate tax issues only. So yes, tax is my forte. Tax is something I love to do. And right now, I'm honored to be a part of this forum. And we're more than happy to take any questions from the audience or from your side regarding this tax credit regime. Thank you, Sadia. You have been very humble when she carries a lot of experience, and I'm sure along the way today she will be able to answer the questions with the knowledge and experience of the tax law, especially in Pakistan, and how they are implemented on that. Sharifuddin Saab, your introduction, please. Sharifuddin Khilji, CEO and tax lead Khilji and Company Chartered Accountants. I am in the profession for last 22 years और tax ही basically main area रहा है मेरा हमेशा से काम करने का. And I am also advising Pasha and PSEB on a number of tax issues, and then this bombshell just came up. So let's see. Sharif Saab, I'm sure that your association in a way with the IT sector through PSEB and Pasha now will certainly be of help as we discuss the merits and demerits of replacing the the tax holiday with the tax credit regime. Nasir Akhtar Saab, although you are known to the entire sector, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा सा आपकी एक दफ़ा फिर से introduction and your relevance to this topic, please. जी अस्सलाम वालेकुम. नसीर अख्तर मेरा नाम है जी. मैं कोई I started this venture about 35 years ago, and ever since I've been trying to understand where we are heading to as an industry and as a nation. I have been interacting with various government on policy issues, but looks like that our tax consultants are equally in the dark, as I hear from Khilji Saab, a term called bombshell. So we have been receiving these bombshells for ages now.
And I'm not surprised. All what I would probably like to know that and to understand, and to be honest with you, I have asked this question to various people at FBR, and nobody could satisfy me or give a clear answer as to what exactly is this and how it relates to. First of all, आप दोनों के लिए सवाल है. एक सवाल मैं सादिया से कर लूंगा. Sorry, Mr. Moderator, I never meant to take charge of your. This actually, the objective has to be met, and I think we all have to make it a conversation, you know, right. rather than me. So please, I think in order to kickstart the conversation, first of all, we need to have the views of the experts, starting from Sadia and then Khilji Saab. Can you tell us the background as to what exactly, how do you differentiate between a tax exemption or tax holiday to a 100% tax credit? The other thing is that which other sectors are under this regime, or has this regime been there for some time, or this is the first experiment that being imposed on us? And if so, why they chose a sector which has just started showing a 40-45% year-on-year growth as opposed to the traditional export sectors? So I need both of you to please enlighten us. Yeah. Naseer sir, इस सवाल का जवाब आपने भी देना है क्योंकि I know that you have got a lot of answers to it. We will also discuss the impact on IT sector. लेकिन Sadia, if you can please. देखिए, जहां तक ये सवाल है आपका कि ये इस रेजीम के पीछे बैकग्राउंड क्या है, लाइक कि क्यों एकदम से ये लाई गई, तो ये जवाब एक ओपन सीक्रेट अब तो हो गया है कि ये एक्चुअली IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ कि हम एग्जाम्पशंस अब खत्म करेंगे, एग्जाम्पशंस को ग्रेजुअली विदड्रॉ करेंगे, यानी टैक्स हॉलीडेज दे हैव टू बी विदड्रॉन. बट एट द सेम टाइम अब आप चूंकि एग्जाम्पशन विदड्रॉ कर रहे हैं, बट आपने इंडस्ट्री को एकदम से डिस्करेज भी नहीं करना कि हम आप पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं. तो उन्होंने उस एग्जाम्पशन को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है टैक्स क्रेडिट स्कीम के साथ. पहले तो एग्जाम्पशन थी कि आपकी इनकम टैक्स ही नहीं होगी, यानी उसकी टैक्सेबिलिटी ही नहीं है, आप जो मर्जी कमाएं, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है और आप कोई आप पे किसी किस्म की कोई लेवी है ही नहीं. अब एक्चुअली उन्होंने लेवी लगा दिया आपको, यानी टैक्स जिस तरह एक नॉर्मल एक और कॉर्पोरेट कंपनी कंप्यूट करेगी, अपनी इनकम कंप्यूट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्लेम करेगी, उसके बाद टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करके उस पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगा के टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेगी, तो आपने उसी तरह ही अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करनी है. हाँ, ये है कि आपको लायबिलिटी पे नहीं करनी, आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा उतनी ही लायबिलिटी का जितनी आपने कंप्यूट की, इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स, सब्जेक्ट टू योर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन. यानी प्रैक्टिकली पहले तो आपकी अनकंडीशनल एग्जाम्पशन थी, आपको कंडीशंस पूरी नहीं करनी थी सिवाय इसके कि आप 80% ऑफ फॉरेन रिसीट्स जो है पाकिस्तान लेकर आए. वो कंडीशन अभी भी है, 80% फॉरेन एक्सचेंज आपको अभी भी लेकर आना है, लेकिन अब आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. वही एग्जाम्पशन अब रिप्लेस हो गई 100% क्रेडिट से, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस दैट यू हैव टू नाउ कंप्लाई विद व्हिच वर नॉट प्रीवियसली देयर. एक कंडीशन तो ये है कि आप विदहोल्डिंग कंप्लायंट, यानी आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं अपनी एक्सपेंसेस की, जिसमें सैलरीज की पेमेंट्स हैं, जिसमें कंसल्टेंट्स की पेमेंट्स हैं, आपकी परचेज है ऑफिस इक्विपमेंट की, रेंट की पेमेंट है, इन सब पे आपने अब टैक्स विदहोल्ड करना है. विदहोल्डिंग पहले भी थी ऑब्लिगेशन, बट उसकी कंप्लायंस इस तरह मैंडेटरी नहीं थी जैसे उन्होंने अब कर दी. You have to make sure you have to have a tax. बिल्कुल मैंडेटरी थी. All the companies they file. अब सही कह रहे हैं कि पहले भी, लेकिन ये नहीं था कि आपकी जो है ना आप कंप्लायंस उस तरह मॉनिटर की जाएगी जैसे अब की जाएगी. नहीं, बिल्कुल की जाती है. पिछले 7 साल के नोटिसेस हैं, ऑडिट्स हैं, उसमें वो ये सारी चीजें करते हैं. अब अगर आप नॉन कंप्लायंट है ना, तो आपका आप ये 100% टैक्स क्रेडिट वो डिसअलाउ कर देंगे. पहले तो था कि आप नॉन कंप्लायंट होते तो आपसे वही टैक्स रिकवर होता है जो आपने विदहोल्डिंग किया, आपसे वो भी कवर होगा और आपका ये क्रेडिट भी डिसअलाउ होगा. Here are the catches now. Okay. Exactly. Here is the catch. एक तो आपको विदहोल्डिंग कंप्लायंस इंश्योर करना है कि अगर कोई थोड़ी बहुत ही उसके अंदर वो थी भी कि हम कुछ नहीं भी कर रहे, वो अब 100% हो. आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्वार्टरली स्टेटमेंट होती हैं, वो आपकी टाइम पे फाइल हो, और वो फाइल होनी चाहिए. आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हो. और जो ट्रिकी पार्ट है, जो कि मैं समझती हूँ कि FBR ने ज्यादती की है, जो चौथी कंडीशन है वो ये सेल्स टैक्स रिटर्न्स की उन्होंने बीच में डाली है कि वो भी अब आपने फाइल करने हैं. नाउ
कीपिंग इन व्यू द फैक्ट इज जो IT एक्सपोर्ट की इनकम है, IT इनेबल्ड सर्विसेज और IT एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, दिस इज एक्चुअली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। ये इस FPR ने खुद भी एग्जेम्प्ट की हुई है सेल्स, दैट्स राइट। और प्रोविंसेस ने भी इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ये पंजाब में भी नहीं वो एग्जाम्प्ट नहीं है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता। एक्चुअली एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड होती हैं और उसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई होता। सर्विसेज के केस में लॉ में क्लैरिटी नहीं थी, तो फिर इन्होंने बकायदा एक नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि जी जहाँ पे एक्सपोर्ट है IT सर्विसेज की, तो वो जीरो रेटेड तो नहीं है बट एग्जाम्प्ट है, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज सेल्स टैक्स। अब ये नोटिफिकेशन जब एप्लीकेबल है और आपने खुद FPR ने कह दिया कि हम इस पे सेल्स टैक्स नहीं लेवी कर रहे, सेल्स टैक्स नहीं लगता, ये एक्सपोर्ट है, तो फिर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग की कंडीशन बीच में डालने की क्या जरूरत है? 100% मैं आपको बता दूं, उसका हम फायदा उठाएंगे अब। अच्छा। ये कि पिछले 20 साल में हमने इनपुट क्लेम ही नहीं की, रिफंड क्लेम ही नहीं किया, एक जीरो। I mean, we do consume sales tax. We buy services, we buy goods, but we never claim refund against exports as textile people do. But now we will do. नहीं नसीम सर, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए कि एग्जेम्पशन और जीरो रेटिंग में फर्क है। देखिए ये एग्जेम्पशन है आपके केस में, दिस इज एग्जेम्प्ट। एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल की है या गुड्स की है वो जीरो रेटेड है। जो जीरो रेटेड होती है उसमें रिफंड आपको मिलता है, क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ जीरो, वेयर अगेंस्ट यू कैन क्लेम इट। यहाँ पे एक्चुअली एग्जेम्पशन है, इट्स अ टेक्निकल डिफरेंस। नहीं, यहाँ पे मैं आई एम सॉरी, वी शुड नॉट ड्रैग दिस एंड वी शुड टेक दिस या देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। फॉरगेट अबाउट जीरो रेटेड और एग्जम्प्टेड, इट्स ए कंजम्पशन टैक्स which is charged to the person who you are selling the goods. And if they are out cross border, we never receive any invoice whereby somebody from Europe or US they charge as sales tax. Yeah. So there is it's unconstitutional even to discuss charging sales tax on cross border transactions. So there is no question of being zero rated or exempted. Nothing. It's not a favor. It's simply not chargeable to somebody in New York. How can we charge a consumption tax to a person who's consuming our goods or services outside Pakistan? Right? Actually, साहब आपकी बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो सर्विसेज के लॉज है ना पाकिस्तान में, जो सेल्स टैक्स के हैं, व्हिच आर एक्चुअली प्रोविंशियल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनली जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एब्सोल्युटली, का अलग लॉ है, पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है। उसमें उन्होंने इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दी हुई सर्विसेज को, जो आप पाकिस्तान में बैठ के रेंडर कर रहे हैं और कस्टमर आपका बाहर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारी सर्विसेज है KPMG की या कोई भी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अगर सर्विस देता है पाकिस्तान में और क्लाइंट बाहर बैठा हुआ है तो उस पे एग्जेम्पशन नहीं है। वी हैव टू चार्ज सेल्स टैक्स एंड वी डू। IT के केस में स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन दे के उन्होंने एग्जेम्पशन जो है वो दी है। अब उसके बाद ये 100% क्रेडिट के लिए ये रिक्वायरमेंट डालना, गेटिंग बैक टू द क्रेडिट इशू, कि आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो प्रैक्टिकली इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि आपने एक तरफ एग्जेम्पशन दे दी सेल्स टैक्स से और आपने खुद कहा कि जी नहीं है, इस पे हम सेल्स टैक्स नहीं ले रहे, तो फिर आप रिटर्न क्यों फाइल करा रहे हैं? और आपने इनपुट भी नहीं देना, क्योंकि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि एग्जाम इनकम सेल्स टैक्स आउटपुट एग्जाम्प्ट है, तो फिर इनपुट तो आपको नहीं मिलता है एज पर लॉ, तो आपने वो भी नहीं देना रिफंड। तो why you have brought this condition of filing of sales tax return when even otherwise it's a provincial subject? Like FPR cannot enforce filing of sales tax returns in Punjab or to Punjab Revenue Authority or to Sindh Revenue. Absolutely great. Khilji साहब। सर जैसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे, मैं वन बाय वन टेकअप करता हूँ। सादिया की याददाश्त अच्छी है, मैंने लिख लिए थे। बैकग्राउंड तो सादिया ने बताया कि IMF का है। दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन रेज किया कि टैक्स एग्जेम्पशन में और टैक्स क्रेडिट में फ़र्क क्या है। तो अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि लेमैन लैंग्वेज में तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि लेमैन को तो बज़ाहिर आप समझें तो एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू पे टैक्स। लेकिन एक जो टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स क्रेडिट में कुछ टेक्निकल फ़र्क है, और वो जो टेक्निकल फ़र्क है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट डिसीजन है, उसमें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। और उस टेक्निकल फ़र्क की वजह से भी कुछ मसाइल सामने आएंगे, तो हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी, तो उस तरफ भी हम इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो एक टेक्निकल डिफरेंस मौजूद है टैक्स एग्जेम्पशन में और टैक्स क्रेडिट के अंदर। दूसरा जो फ़र्क है वो सादिया ने राइटली एक्सप्लेन किया कि जो
एग्जेम्पशन रिजीम था उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी 80% फॉरेन रेमिटेंसेस की, वेयर एज जो क्रेडिट रिजीम है उसमें 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस, रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करना है, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। अच्छा, कंपनीज तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों से कंप्लाई कर भी रही हैं और प्रॉबेबली फ्यूचर में भी उसी तरह से कंप्लाई करते रहेंगी। उनको कुछ इंटरप्रिटेशन के और कंप्लाइंस में एफबीआर की तरफ से इश्यूज आएंगे, लेकिन जो ज़्यादा मसला मुझे नज़र आता है वो स्मॉल साइज एंटिटीज और फ्रीलांसर्स को तो बहुत ज़्यादा मसला सामने आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर अभी उसकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। तो जब किसी इंडिविजुअल की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो उसको ना कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, और अगर उसकी इनकम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं है तो उसे विथहोल्डिंग स्टेटमेंट भी नहीं फाइल करनी, ना उसे कोई विथहोल्डिंग करनी है, और ना ही उस इंडिविजुअल को सेल्स टैक्स फाइल करना है। तो यकदम जो फ्रीलांसर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी आ गई हैं। और कंपनीज, जैसे आपने राइटली फरमाया, कंपनीज तो ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी चीजों से कंप्लाई कर रही थी, फिर भी वो 7-7 साल के नोटिस भुगत रही थी। लेकिन पहले नॉन कंप्लाइंस की वजह से जो उन पे इम्पैक्ट आता था वो ये होता था कि चंद पेनल्टी लग गई, केस में चले गए वगैरह वगैरह। अब एक जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि आपका जो क्रेडिट है वो विड्रॉ कर लेंगे, और क्रेडिट विड्रॉ करने में अनफॉर्चुनेटली इसमें जो कंडीशन में लिखा गया है, इवन एक सिंगल इंस्टेंस पर भी, जिसे मैं कहता हूँ कि अनब्राइडल्ड पावर्स दे दी गई है, कि अगर एक सिंगल इंस्टेंस भी ऐसा हो कि जिसमें आपने नॉन कंप्लाई किया है तो कमिश्नर के पास पावर है कि ही कैन विड्रॉ द इवन द क्रेडिट रिजीम। उसमें कोई ये नहीं है कि आपने 10 डिफॉल्ट की हो, 12 डिफॉल्ट की हो तब जाके आपका विड्रॉ होगा। उन्होंने कहा जी आपने टैक्स डिडक्टेड सोर्स प्रॉपर किया होगा, अगर प्रॉपर नहीं है तो ये आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो बॉम्ब शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया था वो इस वजह से सोच समझ के इस्तेमाल किया था कि स्टार्टअप्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा बॉम्ब शेल है, और कंपनीज के लिए निस्बतन छोटा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी ह्यूज हो सकता है इफ देयर इज अ छोटा नहीं, उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ा है दूसरा सर। सर वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो दूसरी चीज सर इसमें जो जिसकी वजह से मैंने क्योंकि आपने कहा कि बॉम्ब शेल का लफ्ज इसमें दूसरा जो है वो ये है कि जो अभी इसमें ड्राफ्टिंग है उस ड्राफ्टिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें काफी ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश या डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मौजूद है। मसलन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो है, मुझे ये लगता है कि उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मजीद लाने की ज़रूरत है। आल्दो इन्होंने मेन सेक्शन में लिख दिया है हर किस्म के टैक्सेस से, लेकिन जो ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है वो लगता है 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर, उसके सेक्शन में रेलेवेंट चेंज नहीं की गई। फिर इसको मैं कंपेयर करता हूँ एनपीओज के साथ। एनपीओज जो है वो भी 100% क्रेडिट रिजीम में 2015 से मौजूद है, और एनपीओज को जब ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स से उनको एग्जेम्पशन दी गई या क्रेडिट दिया गया तो स्पेसिफिकली ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स के सेक्शन में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर नहीं ये लिखा। काइंडली जरा फॉर पब्लिक ये जरा क्लियर कर दीजिए, व्हाट डज एनपीओ स्टैंड्स फॉर? एनपीओज इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी पहले एग्जाम्प्ट होती थी। 2015 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये टैक्स क्रेडिट रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया, उनके लिए अभी तक चल रहा था। फिर इसमें काफी सारे ड्राफ्टिंग के एरर्स थे, और अभी इंटरेस्टिंगली जब आपके लिए ये 100% क्रेडिट रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उनका पूरा सेक्शन भी रिवैम्प किया गया, यानी 5-6 साल बाद दे हैव लर्न सम लेसन्स और उसको रिवैम्प किया गया है। तो यहाँ पर भी एक ही है कि शायद 3-4 साल बाद दोबारा सारी रिवैम्पिंग हो और ये सारे जो इसमें अभी बज़ाहिर कुछ लेकिनाज नजर आ रहे हैं वो सेक्शन के दूर हो, तो उनको भी कम से कम अभी हम फोर्सी करके हमें उन्हें ठीक करवा लेना चाहिए, ये गवर्नमेंट को ठीक कर लेना चाहिए। उनमें से एक, जैसे मैंने कहा कि ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, टू एन एक्सटेंड मिनिमम टैक्स भी है, लेकिन मिनिमम टैक्स क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया है तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक जो इशू है जो इसमें मुझे इंटरप्रिटेशन का इशू नजर आया वो ये था कि पहले अगर कोई इनकम एक्सपोर्ट की थी ना वो स्पेसिफिक एग्जाम फ्रॉम टैक्स थी, तो अगर किसी शख्स की एक्सपोर्ट इनकम भी है और लोकल इनकम भी है तो एक्सपोर्ट एग्जाम हो जाती थी और लोकल के ऊपर वो टैक्स दे देता था। अब इसमें जो एग्जेम्पशन दी गई है वो पर्सन को दी गई है। उन्होंने कहा जी पर्सन जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। अब इसकी दोनों तरफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी हर किस्म की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाए, अगर वो लोकल भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है तो दोनों एग्जाम्प्ट हो जाए। और दूसरी ये हो सकती है कि पर्सन जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कह लीजिए जो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है उसको तो एग्जेम्पशन है, जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और लोकल भी कर रहा है उसको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी।
तो देयर आर टैक्स क्रेडिट चांसेस अवेलेबल नहीं। ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन की अभी जो करंट ड्राफ्टिंग है उसके अंदर। तो ये जो आप जी टैक्स शरीफुद्दीन क्रेडिट साहब, अभी अवेलेबल हाँ, नहीं। अभी अभी काफी सारे सवाल तो ये जो है ना, जनरली इसमें इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर ये कुछ एक दो चीजें थी। शरीफ अच्छा, साहब एक सेल्स थोड़ा टैक्स सा, के हवाले से सर बात चल रही थी, और जी शरीफ साहब मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि काफी सारे लोगों का सवाल आई थिंक हम शायद बहुत आगे सर निकल गए हैं, वो अभी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि टैक्स क्रेडिट रिजीम है क्या। तो अगर थोड़ा सा अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और छोटी कंपनीज हैं और शायद बड़े कंपनीज को भी नहीं पता कि टैक्स क्रेडिट रिजीम क्या है। इनफैक्ट क्वेश्चंस आर, देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जनरली जब आप टैक्स में अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो वो उसकी एक अवेयरनेस फैलाई जाती है। एक जनरली ये पता होता है बजट आने वाला है, बजट में गुजर रहा है, मैसिव उसमें डेलिब्रेशन होती हैं, उसमें बिजनेस सेक्टर्स को एंगेज किया जाता है। इस दफ़ा कुछ ऐसा सिलसिला हुआ नहीं, और बिल्कुल जैसे विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, जबकि 30 जून का फाइनेंशियल ईयर है, आपने 22 मार्च से आपने इसको इन्वोक कर दिया है। तो एक तो करंट ईयर का पूरा मॉडल है कि इसमें इस करंट ईयर को कैसे इस रिजीम को फॉलो करना है ताकि कंप्लायंस में रहे, और गोइंग फॉरवर्ड जो अगर ये रिजीम परमानेंट हो जाती है तो उसमें क्या होगा। तो अगर अभी हम इस साल की हम बात कर लें कि ये रिजीम है क्या एग्जैक्टली, टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ एन आईटी कंपनी। और उसमें ज़ाहिर दो सेक्टर्स होंगे, जो एक्सपोर्ट्स ओनली है, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता था एफबीआर से, ना रिटर्न फाइल करते थे, ना जनरली इनका कोई सेल्स सेक्टर रजिस्ट्रेशन है, ना प्योर एलिमेंट है, और दूसरी वो कंपनी जो डोमेस्टिक में भी हैं और एक्सपोर्ट में भी हैं। थोड़ा सा अगर आप एक लेमैन टर्म में कोशिश करें समझाने की। जी, अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स वाले हैं उनके लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकल वालों के लिए ये क्रेडिट रिजीम नहीं है। एक्सपोर्ट्स जो है, पहले ये था कि अगर फर्ज किया आपने 10 लाख रुपए की एक्सपोर्ट की है, तो 10 लाख रुपए आपके फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू या उसका 80% आपने अपने अकाउंट में मंगवा लिए। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, फाइलर बनना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम होता है, उस एग्जेम्प्ट इनकम में आपने सिर्फ वो इनकम डिक्लेयर कर देनी है, और उसके बाद मजीद कोई कैलकुलेशन या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत उसमें नहीं रहती। अभी ये है कि आपके पास जो, अगर फर्ज किया आपके 10 लाख रुपए की इनकम है, तो आप पाकिस्तान में मंगवाएंगे, तो उस 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर पहले आप जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके मुताबिक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। मसलन एप्लीकेबल टैक्स रेट है 29% का, तो 29% का मतलब है 10 लाख का 29%, 2,90,000 रुपए आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप फुली कंप्लायंट हैं उन रिक्वायरमेंट से जो इस लॉ में लिखी हुई है, जो 4 कंडीशन है, तो फिर आप क्या करेंगे, 2,90,000 में से 2,90,000 पूरे के पूरे माइनस करेंगे, और आप पे कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी एट द एंड ऑफ द डे आप गवर्नमेंट को टैक्स पहले भी जीरो ही दे रहे थे और अब भी जीरो ही दे रहे होंगे। लेकिन पहले ये जो टैक्स था ये सब्जेक्ट टू सिर्फ 1 कंडीशन था, अब ये टैक्स सब्जेक्ट टू 4 कंडीशन है, और कैलकुलेशंस जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है बनिस्बत पहले। तो ये बुनियादी फर्क है एग्जेम्पशन रिजीम में और क्रेडिट रिजीम में, अगर लेमैन लैंग्वेज में। आई होप कि ये थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग। बताएं कि अभी अभी जो 0% टैक्स देना होता है क्योंकि एग्जेम्पशन है, और इसमें जो आपने की टैक्स कैलकुलेशन की, तो अभी तो मेरे ख्याल में बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास शायद कोई टैक्स कंसल्टेंट मौजूद ही नहीं है। जी, तो अभी होता है कि इफेक्टिव आपके ख्याल में ये जो जिस टैक्स की बात कर रहे हैं जिसपे हम करते हैं वो परसेंटेज क्या है इफेक्टिवली टैक्स जो क्या बनेगा, वो भले से हो सकता है वो क्रेडिट की वजह से ना हो सके, लेकिन वो है क्या, व्हाट इज दैट रेट। हाँ, अच्छा, इसमें जो कंपनीज के ऊपर एक कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद इसकी एक्सपोर्ट के इक्वल कर दिया जाए, जो बाकी एक्सपोर्टर्स है ना वो 1% ऑफ वो तो ग्रॉस रेवेन्यू 1% देते हैं। होगा जी। हाँ जी, लेकिन वहां पर ना स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का वर्ड लिखा हुआ है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि वो 154 अप्लाई नहीं होगा और नॉर्मल टैक्स रिजीम अप्लाई होगा। नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये होता है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है 29% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 17% ऑफ अकाउंटिंग इनकम और 1.5% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, विच एवर इज हायर। 3 कैलकुलेशन हैं, और तीनों में से जो हायर कैलकुलेशन है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। तो इनमें से जो हायर अमाउंट आएगी, फिर आप कहेंगे मुझे इस हायर अमाउंट का 100% क्रेडिट मिल जाए, वो क्रेडिट आपको इन कंडीशंस को मीट करके मिलेगा।
तो इसका मतलब ये हो गया नसीर साहब कि अगर मैं बिल्कुल एक एक्सट्रीम दूसरा व्यू लूं, क्योंकि हमें जिस किस्म की, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान में माशाल्लाह आप जितने 3 डेकेड से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, तो एक आम कंपनी के लिए डोमेस्टिक बिजनेस में और एक्सपोर्ट्स में फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक में वो क्रेडिट पे जा रहा है, जिसका मतलब ये हो गया कि आखिर में वो जो नोटिस आएगा या जो इंस्पेक्टर के सामने खड़ा होगा हाथ बांध के, वो उसको अपने आप को कहेगा नहीं जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई कैप भी नहीं है। तो जो कैप है वो वही है जो कि एक डोमेस्टिक उसके ऊपर है। तो एक्सपोर्ट्स की हम जो बात करते हैं, बल्कि इस दफा ये हुआ है कि आईटी को इस बार डाल दिया गया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आईटी सेक्टर को इंक्लूड किया गया है कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ये वाला। सोशल स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की बात हो रही है, ताकि हम जो है वो हाई एंड एक टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। हम फॉरेन जो कंपनीज हैं हम उनको यहाँ ला सकें एज एन R&D के लिए। तो आपके ख्याल में ये जो इतना इतना जो एक ओपन किस्म की जो बात है, ज़ाहिर जो डोमेस्टिक बिजनेस में है वो तो आदी हैं बहुत सालों से, आप इसको कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं विद द लेवल ऑफ अवेयरनेस विद इन IT सेक्टर अमंग द टैक्स इंस्पेक्टर्स एज वेल एज अमंग द टैक्स एडवाइजर्स? क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बड़ा क्लियर है, इट्स रिटन ऑन द वॉल कि हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं या पॉलिटिकल एलिट्स हैं, दे हैव नो क्लू कि IMF इनके साथ करके क्या गई है। इमेजिन दे पिक्ड अप a sector which was with the least investments, unlike ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स। आपको BMR करने हैं, आपको मशीनरी मंगवानी है, आपको कंपेटिटिव होने के लिए वो करना है। टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें फॉर एग्जांपल, जो कि पिछले 40 साल में एटलीस्ट $50 billion इक्विवेलेंट ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिबेट्स एंड ये वो उनको दे चुके हैं, and they are growing 2%, 3% marginally or flat, उनकी वो है। So why they have picked up? Somebody needs to ask this question to our economic planners कि एक वो सेक्टर जिसमें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट है, it's only in talent, in human capital. So no machinery, nothing. We don't even need special tariffs for electricity, gas and all that. So वो they picked up. नसीर साहब, वो तो मिल भी नहीं रहे। नहीं, वो तो हमने चाहिए भी नहीं है ना इस सेक्टर, यही तो प्रॉब्लम है। वो दैट इज व्हाट IMF पिक्ड अप के यार इनको ये, इससे पहले कि ये जो है ना ये सेल्फ सफिशिएंट, ये वाला जो है ना कैप करो इनको और इसमें फंसाओ इनको। मेरा सिर्फ सवाल वही है कि आपके ख्याल में एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक्सपोर्ट्स ओनली है, जिसका कोई ताल्लुक से नहीं है, वो नॉर्थ क्लास टैक्स कंसल्टेंट है खलील साहब जैसे, ना वो KPMG के साथ उनके ज्यादा वास्ता है, छोटी सी कंपनी है, $5 लाख मिलियन साल का एक्सपोर्ट कर लेती है, अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, उसको पाकिस्तान की ये जो कॉम्प्लिकेशन है टैक्स की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो खलील साहब ने बड़े प्यार से कह दिया कि जी बस वो 4 कंडीशन है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की ये मेथड है। आपके ख्याल में ये क्या काम कंपनी खुद कर सकती है? नाउ दे विल नाउ नीड एडवाइजर्स, एवरीबॉडी हैज टू हैव अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, और उसके बाद उसका रिस्क कितना हाई हो जाता है आपके ख्याल में? Even if they have likes of KPMGs as their advisor, वो उनको compliance तो उनको करनी है ना, वो तो KPMG ने या खिलजी साहब ने नहीं करवानी। उन्होंने तो कहना है कि जी बस ये आप रिकंसाइल कर दें कि जो उन्होंने मांगा हुआ है इसको कंप्लायंट कर दें आप, वो तो हम ही नहीं करनी है। एंड to what extent the smaller companies, चलें larger companies, they can afford, they already are immaculately filing, उनकी जो है ना वो फैंटास्टिक है, जीरो टॉलरेंस के ऊपर चलती है, because the way we conduct our business with overseas large clients, they are also compliant and they don't want anything कि जी आप जो है ना वो किसी ग्रे एरिया में फॉल कर रहे हो, so things like that. But nevertheless, let's ask Sadia what she has to say कि what other sectors are under this regime. जी, जो दूसरा अदर सेक्टर है जैसे आपने पूछा,
ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे खिलजी साहब ने भी मेंशन किया कि 2014 फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकी पहली दफा ये अमेंडमेंट आई थी कि इनकी एग्जेम्पशंस खत्म करके इन्होंने रिप्लेस कर दिया था टैक्स क्रेडिट से, जिसमें अगेन यही कंडीशंस थी कि जी विदहोल्डिंग कंप्लायंट हो, रिटर्न फाइल किया हो, और साथ में कुछ और भी उनकी कंडीशंस हैं। पर उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी वो उन्होंने डेफर की उसके अंदर। वो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन जो बाद में हम ला रहे हैं ये इफेक्टिव होगी 1 जुलाई 2020 से। यानी उसमें भी उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी थी जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी और जिसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए था एक दूसरी अथॉरिटी से। यहाँ जो उन्होंने ज्यादती की है एफपीआर ने कि एकदम से ही ये रिजीम चेंज कर दी आईटी सेक्टर के लिए और कोई टाइम नहीं दिया सेक्टर को प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं होता नॉर्मली। होता ये कि जब लॉ में चेंज लाते हैं, एक होता है एंट्री इनटू फोर्स, यानी उस लॉ को आपने प्रोमलगेट कर दिया और स्टैट्यूट का पार्ट बना दिया, बट एंट्री इनटू इफेक्ट के लिए आप आगे की डेट देते हैं ताकि जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने उसकी कंप्लायंस करनी है और जिनके ऊपर आपने ऑब्लिगेशंस क्रिएट करनी है, उनको टाइम मिले कि वो अपने प्रोसेसेस, अपने सिस्टम्स तैयार करें और उस डेट से फिर आप लॉ को इफेक्टिव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो ज्यादती की है वो ये कि ये 22 मार्च को ये अचानक ये सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया। ये फाइनेंस बिल के थ्रू भी नहीं आया, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया पूरा, यानी इसकी डिबेट भी नहीं हुई कि हम कहें कि जी एक बिल आया था और असेंबली में भी डिबेट हो रही है और हम इसमें चेंज ला सकते हैं। इस दफा ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए विदाउट एनी प्रायर डिबेट और इफेक्टिव भी इन्होंने इसको इमीडिएटली कर दिया। लाइक एज ऑफ दिस डेट व्हेन वी आर टॉकिंग, दिस रेजिम इज एप्लीकेबल, which never happened in the case before. Even NGOs के भी लिए जब ये कंडीशन लाए तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल किया था और फाइनेंस बिल के थ्रू आया था। यहाँ पे जो लाए, अब ये आईएमएफ की वो ट्रांच रिलीज करानी थी कि क्या था, बट ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस कंडीशन को डेफर नहीं किया जा सकता था 1 जुलाई तक। यानी आप ये पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईटी की जो एक्सपोर्ट जिस तरीके से ग्रो कर रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब हों या बाकी तमाम लोग हों, आई थिंक वी ऑल टेक प्राइड कि जिस सेक्टर ने एक साल में $800 मिलियन की एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दी है, तो आई रियली वंडर कि आईएमएफ की ऐसी कौन सी ट्रांच है जो कि उससे ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू अ डोमेस्टिक कैपेसिटी। वो इसमें बड़े अमाउंट की नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, $500 मिलियन थे सारे, कोई इतनी बड़ी मैं अमाउंट ही कहना चाह रहा था, लेकिन $800 मिलियन आप जब आप एक सेक्टर एक साल में ग्रो कर रहा है और उसको उसके विंग मेरे लिए क्लिप किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है वो ये आता है कि सर्टेन डिबेट्स के बाद कुछ सेक्टर्स को उन्होंने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो नसीर साहब बात ये है कि मेरे ख्याल में आईएमएफ तो जो भी प्रपोजल दे रहा है, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट और जो उसमें जो भी करता लोग हैं, दे कुड हैव कंसिडर्ड आईटी टू बी एज एसेंशियल टू पाकिस्तान एंड इट्स पॉपुलेशन एज सम अदर प्रिविलेज्ड सेक्टर्स आर। तो वो तो मेरे ख्याल में कुछ डिसीजन तो आईएमएफ के हो सकती है रिकमेंडेशन, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा अपना भी रोल कम नहीं है कोई इस सारे। अच्छा सादिया, मुझे ये बताइए कि अभी एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक, ये अचानक एक ऑर्डिनेंस आ जाता है इफेक्टिव डेट 22 मार्च, तो अब ये मिड ईयर है ये, तो इसको अभी कंपनी क्या करे? सो जो कंपनी जिसको कुछ इल्म नहीं है, वो क्या करे? रिटर्न फाइल करेगी तो 12 महीने की करेगी या 22 मार्च से 30 जून तक करेगी? जो इस वक्त ट्रांजैक्शन पहले हुई हुई है, क्योंकि सेल्स टैक्स का मामला है, विथहोल्डिंग टैक्स मामला है, तो ये कट ऑफ डेट 22 मार्च की कैसे होगी? कोई क्या ये इसकी कोई प्रेसिडेंट एज सच अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा इन्होंने अब्रप्टली किया है। रिटर्न तो 12 मंथ्स का ही फाइल होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आप 3 महीने का अलहदा रिटर्न करें और 9 मंथ्स का अलहदा करें। रिटर्न पूरे साल का एक ही फाइल होता है। हाँ, ये होता है कि अब ये डिबेटेबल इशू है, इस पे लीगल प्रोनाउंसमेंट्स हैं और डिफरेंट व्यूज हैं। इस सिचुएशन में जब उन्होंने कट ऑफ डेट बीच की लगा दी है और ना स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी? एक उसमें व्यू ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइलिंग के डेट पे जो लॉ होगा वो अप्लाई करना चाहिए। लेकिन प्रेवलेंट व्यू ये है कि आप इनकम को एक्चुअली बाइफरकेट करेंगे डिफरेंट 2 पीरियड्स में। एक पीरियड आपका 22 मार्च तक की डेट का तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है, वो अनकंडीशनल एग्जेम्पशन, तो वो 80% आप लेकर आएंगे, बस वो कंडीशन है। जो दूसरा पीरियड है जो आगे 3 मंथ है, अनलेस के एफपीआर कोई नोटिफिकेशन के थ्रू उसको कहे कि जी हम इस एप्लीकेशन को डेफर कर रहे हैं, आप उस पीरियड की जो है इनकम सेपरेटली कंप्यूट करेंगे और उसका 100% क्रेडिट अलग कंप्यूट होगा, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दीस 4 कंडीशंस। अच्छा, अब ये है, अब ये ऐसी चीज है, अब ये हमने अपनी जो इस पे कमेंट्री एक निकाली फर्म में, उस पर भी हमने ये चीज हाईलाइट की और हमने कहा कि बेहतर है एफपीआर खुद ही क्लैरिफाई करे और इसकी एप्लीकेशन को डेफर करे 1 जुलाई से। एफपीआर खुद तो नहीं कर सकता, ऐसे पावर एफपीआर की नहीं है, पावर जो है रेवेन्यू डिवीजन की है। उसमें जो एफपीआर के चेयरमैन है, ही इज आल्सो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन,
इसी तरह जो मेंबर पॉलिसी है इज आल्सो एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन। तो वो अपनी जो उनकी दूसरी कैपेसिटी है सेक्रेटरीज टू रेवेन्यू डिवीजन, दे कैन इशू अ नोटिफिकेशन रेफरिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजन फॉर आईटी सेक्टर, दे कैन डू दैट। एक बात और करनी चाहूंगा मैं कि आपने बात की थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, एनपीओज की, कि उनको कन्वर्ट कर दिया गया एग्जामिशन से इसके ऊपर। उनका एक्सपीरियंस क्या था? आपने बात, शायद खिलजी साहब ने अपनी बात जिक्र किया था कि उसकी कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई, कुछ लर्निंग हुई उससे। तो आपके ख्याल में वो क्या, जैसे जितना सिंप्लीफाई से किया जा रहा है कि जी ये तो आपने तो टैक्स नहीं देना, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसी मसला नहीं है, इट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस, देयर इज नो कॉस्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस। आपके ख्याल में जो एनपीओज हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या उनकी बिजनेस कॉस्ट या इफेक्टिव टैक्स रेट वो 0% ही रहा, या इफेक्टिव टैक्स रेट एक्चुअली वेंट अप? हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस? और आपके ख्याल में आईटी में क्या होने वाला है? देखिए एनजीओ में भी कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर एनजीओ का एक डिफरेंट तरीका है अपने अकाउंट्स बनाने का और डिक्लेरेशन करने का। बाज एनजीओ तो ऐसी हैं जो कि डिक्लेयर ही स्टेट अवे लॉस करती हैं, लाइक दे आर इन अ डेफिसिट सिचुएशन, दे आर शोइंग मोर प्रोग्राम एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू ग्रांट्स। तो वहां पे जब आप नीचे बॉटम लाइन लॉस शो कर रहे हो, वहां तो आप क्रेडिट क्लेम ही नहीं करते क्योंकि आप हैं ही लॉसेस पे। कुछ ऐसे हैं जो कि हमने अकाउंट्स देखे तो वो उनकी जितनी इनकम है उतनी ही उनकी रिसीट्स है, लाइक इनकम भी उतनी है जितनी एक्सपेंडिचर है, लाइक वो खर्चा ही उतना करते हैं जितने उनके बाहर से फंड्स या डोनेशंस आई। अगेन बॉटम लाइन जीरो है। तो उसमें ये होता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो इंडिविजुअल केस की बेसिस पे देखते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल है इस एनजीओ में, इसको छेड़ा जाए कि ना छेड़ा जाए। अभी तक तो उन्होंने 100C की जो ये जो टैक्स क्रेडिट का सेक्शन है एनजीओस का, उसकी कंप्लायंस के हवाले से यही व्यू लिया है कि अगर आपके पास कमिश्नर का अप्रूवल नहीं है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि आप कमिश्नर से अप्रूव्ड हो एज एन एनजीओ, बेशक आप किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो एज एनपीओ, टैक्स कमिश्नर का अप्रूवल होना मस्ट है टू क्लेम द क्रेडिट। तो वहां पे वो नॉर्मली वो कंडीशन बस चेक करते हैं कि आपको कमिश्नर से अप्रूवल मिला है कि नहीं, नहीं मिला तो दे जस्ट डिसअलाउ योर क्रेडिट। विदहोल्डिंग को इतना वो नहीं देखते। तो शहजाद आपको जवाब मिल गया ना, यू गॉट द आंसर। सर वी आर एट मर्सी ऑफ द कमिश्नर। नो 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 नो, वो तो बात की बात है। let me publicly say that, and it's not that we are it as a matter of retaliation and all that. I can tell you that 80% of revenue coming in from exports are for the companies who have their back offices here. I can guarantee you that they will be doing the same thing which NPOs have been doing. They will be only sending the money over here, which is barely their expenses. And they will say, okay, zero profit or loss. So next year, the State Bank will be coming up with the figure that instead of 40% growth from 2 billion to 2.8 billion की बजाय वो 1.4 billion रह गई है हमारी IT की export. So if they are not willing to argue on what we are saying, let them face it then. Against the $500 million tranche, they will be losing $2 billion in one. आपको लगता नहीं है कि अगर जैसे हम सब का एक जो थोड़ी बहुत एनालिसिस ये कहती है कि द एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट तो जाहिर है ग्रेजुअली इट विल गो अप, लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल है इट विल बी टेपर डाउन बाय 50%, जो ग्रोथ पेस थी आपकी वो सब इफेक्ट होगी। लेकिन मुझे तो लगता ही है कि उसके बाद होना ये है कि गवर्नमेंट में कोई सियाना बंदा ये बोलेगा कि जी वो क्योंकि कोविड की वजह से अचानक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आ गई, तो नाउ दिस इज द यूजुअल ग्रोथ एंड दे विल देन सेटिस्फाई द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उन्होंने तो डॉक्यूमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। तो खिलजी साहब ये बताइए मुझे कि आपके ख्याल में क्योंकि आप काफ़ी सारी कंपनीज को आईटी सेक्टर में एडवाइजरी दे रहे हैं, आपके ख्याल में उनकी जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ टैक्स है उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, या 0% होगा इम्पैक्ट? जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो मेरा ख्याल है बड़ी कंपनीज के लिए इमीडिएट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस हैं वो बड़ी कंपनीज ऑलरेडी, जैसे नसीर साहब ने फरमाया, ऑलरेडी मीट कर रही हैं और चीज़ें फाइलिंग वाइलिंग हो रही है। जो असल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी वो स्टार्टअप्स के लिए और एसएमईज के लिए होगी। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी कंपनीज के लिए भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी, क्योंकि जो ये रिजीम है इस रिजीम में इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि देयर विल बी मोर नोटिसेस, देयर विल बी मोर स्क्रूटनी और देयर विल बी मोर लिटिगेशन। तो यस, वी आर गुड बिजनेस फॉर टैक्स एडवाइजर्स।
अभी अभी फरवरी में जो है वो गवर्नमेंट ने एफबीआर को परमिशन दे दी है कि आप आईटी एक्सपोर्टर्स को ऑडिट कर सकते हैं। So this actually was in the media that government has permitted the FBR to go after IT sector and IT exporters and do the audits. तो अभी आपके आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हमें सामने आए हैं जिसके अंदर एक आईटी एक्सपोर्ट्स 100% एक्सपोर्ट कंपनी है, उसको उसको सेल्स टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। तो ये बताएं कि टैक्स क्रेडिट रिजीम और सेल्स टैक्स को आप के रेलेवेंस में समझाएंगे कंपनीज के लिए, क्योंकि बहुत से सवाल भी आ रहे हैं कि जी इफ वी आर नॉट, आई मीन व्हाई हैव वी गेट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स, एंड सेकेंडली विच सेल्स टैक्स, मतलब क्या हम एसआरबी से करेंगे अगर हम कराची कंपनी एक्सपोर्ट कर रही हैं, या हम किससे करेंगे अपने आप को रजिस्टर? सॉरी, दरमियान में कुछ डिस्कनेक्ट सा हुआ तो मैं मैं कहता कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन क्या अब मैंडेटरी हो गई है अंडर दिस रिजीम, और अगर हो गई है या नहीं हो गई ये क्लियर कर दें, और अगर हो गई है तो ये किस क्या प्रोविंशियल से कराना है आपको, या आपको जो है एफबीआर से कराना है? हाँ, देखिए जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जब 2015 में एनपीओज के लिए रिजीम लेके आए ना, तो कई ऐसी प्रोविजंस थी वो इन्होंने लाके सारे यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब लॉजिकली सेल्स टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट, सादिया ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि आप एक्सपोर्टर से कह रहे हैं जो एग्जेम्प्ट है कि आप सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करें, फिर कंसिडरिंग कि आपके 5 प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लॉज हैं। तो आपके जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज हैं उनमें क्या आप उन सब लॉज के साथ कंप्लाई करें, उसके उन लॉज में भी आपको एग्जेम्पशंस दी गई हैं। तो सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्सेसिव हैं। मेरा ख्याल है कि जो एक्सपोर्टर्स के लिए खास तौर पे जो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं कि पहले वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर भी करवाएं, फिर मंथली सेल्स टैक्स भी फाइल करें। और जैसे सर ये फरमा रहे थे कि हम इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, तो आई सेकंड सादिया कि वो इनपुट टैक्स का क्लेम टेक्निकली हो नहीं सकेगा। इट विल ओनली बी अ लिटिगेशन अगर इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, टेक्निकली दे कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स। तो इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और आई डोंट नो कि इससे क्वेश्चन कभी गवर्नमेंट पर्पस रिजॉल्व कर सकेगी। तो आपका ये ख्याल है कि तमाम कंपनीज को जो है सेल्स टैक्स से रजिस्टर होना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो किस प्रोविंस से उनका ताल्लुक है, आप ये कह रहे हैं? तो कुछ लोग पिंडी इस्लामाबाद के हैं, वो आईसीटी वाले रीजन एफबीआर से होंगे, फिर पीआर कुछ पीआरए से होंगे कुछ, और अगर ऐसी कंपनीज जिनके रीजनल ऑफिसेज हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनका कराची में भी है और लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी है, तो उनके लिए क्या क्या होगा उनके साथ? अच्छा, जिन कंपनीज के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में ऑफिसेज हैं, अगर तो वो ऑलरेडी लोकल सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, लोकल सर्विसेज देने के ऊपर तो सेल्स टैक्स पहले भी अप्लाई हो रहा है, तो वो अगर सिंध में है तो एसआरबी से रजिस्टर्ड होंगे, पंजाब में है तो पीआरए से रजिस्टर्ड होंगे। ये जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई है ये सिर्फ एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए क्रिएट हुई है। तो अब अगर एक एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका इस्लामाबाद में ऑफिस है, पंजाब में भी ऑफिस है और सिंध में भी ऑफिस है, लेकिन वो सिर्फ तीनों ऑफिस एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है, और तीनों जगह पर सब्जेक्ट टू सर्टेन थिंग्स एग्जेम्पशन अवेलेबल है, हम अज्यूम करते हैं, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थे। अब लॉ ने कहा कि भाई आपको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको थोड़ा सा एग्रेसिवली इंटरप्रेट किया जाए तो एक जगह पर भी अगर वो सेल्स टैक्स में रिटर्न फाइल कर दें तो लॉ की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल हो गई है। लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका जो स्टैंस होगा, जो मैं समझता हूँ वो ये होगा कि भाई अगर आप 3 जगह पर मौजूद हैं तो तीनों जगह पर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड भी हो और तीनों जगह पर आप फाइल भी करें, तब हम इस फाइलिंग को मानेंगे। देखिए इस जो रिजीम है ना, रिजीम में असल चीज ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर likely to create a difference of interpretation, litigation chances for the companies. हम एज एन एडवाइजर जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यार ये देखें ये पॉसिबल है और हम इसको फाइट करके विन कर सकते हैं एट द एप्लेट लेवल। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा एंड इट इज लाइकली टू क्रिएट अननेसेसरी लिटिगेशन फॉर द कंपनीज। सो इस रिजीम का जो असल प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है अननेसेसरी लिटिगेशन और लेक्यूनाज हैं जो 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 लीड टू दोस लिटिगेशंस हैं।
जी नसीर साहब, आपकी क्योंकि काफ़ी आप एनालिसिस माशाल्लाह कर सकते हैं और काफ़ी अरसे से आप कुछ काफ़ी इसमें एडवाइस भी दे पा रहे हैं, आपके ख्याल में जो मैं ये सवाल अब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जो मैंने पहले साथी से पूछा, फिर शरीफ साहब से पूछा, so what is the effective increase in the cost of business for exports only company? देखिए जी, उसमें कितना होने वाला है? it depends on what IMF has actually secured as a commitment कि जी रेवेन्यू में आपने इजाफा करना है। तो ठीक है, वो कह तो रहे हैं, आई मीन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट कि जी अगर ये 4 कंडीशन आप कंप्लाई कर दें तो इट्स नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उस पे बिठाया किसको है? कमिश्नर को, जो कि इवन इन केस ऑफ एग्जम्पशन वो इतने केसेस खोल के और इतने वो करके बैठे हुए हैं, विच इज वियर्ड कि यार आप ये लिख कैसे सकते हैं कि जी आपकी जो है ना ये तो है ही नहीं, जो आप कर रहे हैं ये तो एक्सपोर्ट ही नहीं है। वो कहते हैं मैं तो उस वक्त मानूंगा एक्सपोर्ट जब मैं सेटिस्फाई हूंगा कि ये एक्सपोर्ट है। तो वो आप डिस्क्रिशन जो है ना वो एक बहुत ही निचले लेवल पे लाके दे रहे हैं। या तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो ना विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, वो आप खुद ही कैलकुलेट करें एंड ऑल दैट, बट वी डोंट हैव दैट। पर्पसली वी डोंट हैव दोज सिस्टम्स इन प्लेस, सो ताकि वो प्ले रहे। आई मीन इट्स बाय डिजाइन यार। ये देखें, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये हर 4-10 साल के बाद जो है ना टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पे 400-500 मिलियन डॉलर थोपते हैं और उसके बाद वो होता कुछ भी नहीं है। वो सारा ही मैनुअल चल रहा है। अभी भी आप नोटिसेस देखें तो वो फोटो कॉपी किए होते हैं, उसके ऊपर वो हाथ से कमिश्नर ने लिख के स्टैंप लगाई होती है। तो बट ये डिजाइन है। आई मीन वी नीड टू पॉलिटिकली हाईलाइट दिस एंड आर्ग्यू विद द गवर्नमेंट कि जी ठीक है, अगर आपने ये किल करना है इसको बिफोर इट टेक्स ऑफ। आप बातें कर रहे हैं एक तरफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट कि जी हमने 5 बिलियन पे लेके जाना है, 10 बिलियन पे लेके जाना है। इट्स गोइंग टू हाफ नेक्स्ट ईयर विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो और या तो कोई ये है ना कि जी ठीक है को 25-30 सेक्टर पे आपने किया है, व्हाई ओनली दैट सेक्टर व्हिच डज नॉट आस्क एनी फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट? कोई सब्सिडीज नहीं, कोई और इंसेंटिव्स नहीं, कोई टैरिफ्स नहीं, कोई कुछ नहीं लेता। आई मीन मैंने आपको कंपैरिजन बताया है एंड दैट इज ये रिसर्च बेस्ड है, कोई हवा में बातें नहीं है। जो टेक्सटाइल 10-12-11 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, वो तकरीबन 50 बिलियन डॉलर पिछले 40 साल में ले चुका हुआ है और आज भी तकरीबन 20 से 25% जो है वो वापस ले लेता है गवर्नमेंट से इन टर्म्स ऑफ वेरियस इंसेंटिव्स, कैश रिबेट्स एंड अदर थिंग्स। तो ये वो सेक्टर है जो कि आपसे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मांग रहा है, बट इट्स जस्ट आई विश के सेंस प्रिवेल्स एंड समबडी लिसन्स। ये यूनिलैटरल डिसीजन इस तरह के करना, आई थिंक ये फिर हम तो यही कह सकते हैं कि एक्चुअली IMF इज सिटिंग इन आवर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेसी कि वो बड़े कन्वीनियंटली यूं करवा लेते हैं कि अभी साल तो खत्म हो लेने दें, 9 महीने और 3 महीने का क्या कैसे करेंगे? इज देयर एनी प्रोविजन इन दैट फॉर्म कि जी उसमें आप 2 कर सकते हैं या दो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 9 महीने का एक और 3 महीने का एक? ये असल में ना वार्म अप मैच है ये वाला, ताकि वो जो एक्चुअल जो आनी है ना 1 जुलाई से, उसके लिए थोड़ा सा रिहर्सल हो जाए, जरा इंडस्ट्री की जो स्क्रीन है ना वो जरा समझ आ जाए कि वो थोड़ी सी तो आपके ख्याल में, बल्कि सादिया आप या खिलजी साहब अगर बता सके कि स्टार्टअप के बारे में स्पेशल एग्जेम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो पूरी रिजीम है क्या उनके लिए भी आ गई है? जो स्टार्टअप्स जो हमारे हैं उनके लिए भी है या उनके लिए एग्जाम्पशन विथड्रॉ हो गई है? उनकी 3 साल की एग्जाम्पशन थी, जिस पहले साल जब वो सर्टिफाई होंगे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से और अगले 2 साल, तो वही रिजीम मन रिप्लेस कर दिया उन्होंने यही टैक्स क्रेडिट से। यानी अब एग्जाम्पशन नहीं है उनको भी यही टैक्स क्रेडिट ही मिलेगा 3 साल के लिए और सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ जो जैसे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है AT कार्नी, इसको कार्नी जनरली आप कहते हैं, उसकी एक आती है GSLI, ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स। इसके अंदर डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनकी रैंकिंग बताई जाती है इन टर्म्स ऑफ ऑफशोरिंग ऑफ
services. उसमें पाकिस्तान has already came down from the rank of 26th, 3 years ago to now 38. तो हम स्लिप हुए हैं 12 positions, and I can see कि SECP is doing wonderful in whatever capacity that it is able to do. लेकिन आपको लगता है कि ये हमारी जो ease of business है, ये हम जो, क्योंकि ये बड़ा एक डिबेट रहा था लास्ट ईयर, बड़ा उसको सेलिब्रेट किया गया था कि जी हमारी ईज ऑफ बिजनेस स्कोर इम्प्रूव हो गया है, आपके ख्याल में इस पूरी जो रिजीम एब्रप्टली चेंज की जा रही है, इससे हमारा ईज ऑफ बिजनेस इन द और उसका परसेप्शन ग्लोबली, क्या हम रिटेन कर पाएंगे उसकी ग्रोथ, या वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा उससे? ये डेफिनेटली नेगेटिवली इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो कंप्लायंसेस हैं इंक्लूडिंग सेल्स एंड रिटर्न की फाइलिंग्स, जिस पे अभी काफी एम्बिग्युइटीज भी हैं, ये कंप्लायंस करने के लिए एक फुल टाइम एक बंदा तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए जो इंश्योर करे। खासतौर पे जैसे खिलजी साहब ने एक्सप्लेन किया, बड़ी कंपनीज को इतनी एडिशनल कॉस्ट तो नहीं पड़ेगी, बट छोटी कंपनियां अगर फुल टाइम बंदा नहीं भी रखती हैं, किसी को आउटसोर्स करती हैं जो पार्ट टाइम आके देख ले, दे हैव टू पे द कॉस्ट एंड दे हैव टू इंश्योर। मैं जस्ट क्लियर कर दूं, नसीर साहब ने जिक्र किया था बड़ी कंपनीज को नोटिस और डिमांड्स भी बड़ी आती हैं, तो वो होता ये है कि दे हैव अ प्रोविजन ऑलरेडी, राइट? तो अब वो उनको प्रोविजन अचानक चलते चलते वो रिविजिट करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट कि कोई भी इनके रिडार से बाहर है। आई थिंक वो होता ही है कि जिसमें जितनी कैपेसिटी होती है उतना उसको स्क्वीज करना आसान होता है। जो कंपनी स्टैब्लिश है पाकिस्तान में, उनको पता है 70 साल से क्या हालात हैं। वो असल में देखिए चैलेंज ये है कि जो एक्सपोर्ट वाली कंपनीज हैं, दे आर बिल्ड and they have the contracts and commitments to whatever their foreign partners or the local investors. What is the policy that they are following? Now this वो जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान lacks consistent policies, वो हमारे सामने इस वक्त है कि although जब आपकी अगर मैं IT कंपनीज की बात करूं तो इस वक्त हुआ ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरा इस वक्त डॉलर टू रुपी की पैरिटी क्या होगी, right? I mean, good for the country, but we have to see how it is going to help the country. लेकिन the currency has strengthened, पाक रुपये की बात कर रहा हूँ, it is traded around 150 to 153 के ऊपर आ गई है। लेकिन इफेक्टिवली कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से जब आपने प्लानिंग की थी 1 जुलाई 2020 से लेके अभी तक, उसमें आपको वैसे ही एक जो है एक चैलेंज आ चुका है आपको। और दूसरा, जब आप इस कॉस्ट को आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, और इस कॉस्ट का जो दूसरा साइड है जिसको आप सब सही, क्योंकि मेरा फियर ये है कि आपने जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, और उसमें जो अवेयरनेस होगी टैक्स FBR के अंदर, जो उनके जो अपने उनकी टीम है और जो बाकी कंपनीज हैं, इट्स गोइंग टू क्रिएट मैसिव केओस जब आपका 30 जून पूरा होगा और कंपनी जो नहीं किया होगा। हमें अच्छी तरह जब GST रिजीम आई थी पाकिस्तान में, तो 3-5 साल लग गए थे उसको इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि द वे द बिजनेस हैड बीन रनिंग इट वाज टू डिफिकल्ट। तो आपके ख्याल में कोई आपकी क्या एडवाइस है, जो कंपनीज आज के दिन छोटी चल रही हैं, वो इमीडिएटली 3 स्टेप क्या लें या 2 स्टेप क्या लें टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, सेफगार्ड देमसेल्व्स, स्पेशली वो जो आज के दिन ना, तो जैसे अभी बात होती है कि सेल्स टैक्स रजिस्टर कराते हैं, सो व्हाट आर दोस इमीडिएट स्टेप्स दे नीड टू टेक फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? देखिए, जो 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर विदहोल्डिंग कंप्लायंस। इन एनी केस इट वाज रिक्वायर्ड टू, क्योंकि विदहोल्डिंग ऑडिट्स तो पहले भी चल रहे थे FPR के, अब जरा ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, और अब उन्होंने विदहोल्डिंग के साथ लिंक कर दिया आपके 100% टैक्स क्रेडिट को। ऐसी कंडीशन हो सकता है वो विड्रॉ कर लें अगले फाइनेंस बिल में, अगर आप इसके लिए प्रॉपर लॉबी करें और इसको टेकअप करें कि भाई ये तो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और आपने अपने ICT की हद तक आपकी वो है जुरिस्डिक्शन FPR की, तो आप क्यों इसको ये इन्फोर्स करा रहे हैं जबकि ये प्रोविंशियल डोमेन है। तो अगर इसको इफेक्टिवली लॉबी किया जाए तो ये कंडीशन विड्रॉ हो सकती है अगले बिल में। लेकिन विदहोल्डिंग की जो कंडीशंस हैं, दे आर नॉट लाइकली टू बी विड्रॉ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करें और इंश्योर करें कि यू आर कंप्लायंट विद दीज कंडीशंस, और आपका एक इंटरनल एक बंदा जो हो, आई मीन जो भी रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है या टैक्स को देख रहा है, फाइनेंस को देख रहा है, वो इसको मेक कंप्लायंस इसकी इंश्योर करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है as of now, keeping with the provision which exists as of now. ठीक है, शरीफुद्दीन साहब, आपकी क्या एडवाइस होगी कंपनीज के लिए कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, बिल्कुल जब 22 मार्च को अचानक उन्होंने इसको इन्वोक कर दिया है, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स दे नीड टू टेक एंड व्हाट आर द रिस्क दे हैव टू बी अवेयर?
जी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सादिया ने राइटली पॉइंट आउट किया कि कंप्लाइंस चूँकि ये बहुत मैंडेटरी हो गई है और कंप्लाइंस नेसेसरी हो गई है, तो स्टार्टअप्स भी है या बड़ी कंपनीज, इन सब के लिए ज़रूरी तो ये है कि कंप्लायंस को फोकस करें। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो मैं ख़ासतौर पर स्मॉल कंपनीज और स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स के लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगा, वो ये कि जनरली जो हमारे स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स हैं वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी उतने प्रॉपर नहीं रखते, उनके पास एक्सपेंसेस वगैरह की डिटेल नहीं होती, ठीक है। तो जब ये 100% क्रेडिट क्लेम करने के लिए जाएंगे, तो चूंकि इनके पास एक्सपेंसेस प्रॉपर नहीं होंगे तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा और दे विल बी मोर एक्सपोज टू कि अगर उनका टैक्स क्रेडिट रेजिम विड्रॉ हो जाता है तो टैक्स लायबिलिटी हायर साइड पे होगी। तो उन्हें अपनी अकाउंटिंग भी थोड़ी सी मजीद प्रॉपर करने की जरूरत है, यानी एक तो टैक्स कंप्लायंस साइड स्ट्रॉन्ग करें, दूसरी अकाउंटिंग साइड और एक्सपेंसेस की प्रॉपर एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन वो भी उनके लिए साथ साथ जरूरी है। तीसरी जो सादिया ने राइटली पॉइंट आउट किया कि नेटवर्किंग आपको थोड़ी सी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये जो आपका ऑर्डिनेंस है 90 डेज में अब ये बजट में आएगा। बजट में यू हैव अ चांस एज एन इंडस्ट्री, यू हैव अ चांस कि इसके अंदर आप लॉबिंग करें, गवर्नमेंट से मिलें, और जो इसके अंदर लेक्यूनाज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उन लेक्यूनाज को आप राइटली थ्रू अ लेटर, थ्रू पाशा प्लेटफॉर्म, थ्रू पीसैब, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, आप उन चीज़ों को हाईलाइट करवाएं और इस सेक्शन को एटलीस्ट इस तरह से रिवैम्प करें कि ये जो एम्बिग्विटीज हैं ये क्लियर हो जाए। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में 2 रिक्वायरमेंट्स इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जिनको एक तो सादिया ने राइटली पॉइंट आउट किया सेल्स टैक्स वाली, दूसरी जो मेरे ख्याल है कि ख़त्म कर दी जानी चाहिए आल्दो, मतलब वो है विद होल्डिंग टैक्स कंप्लायंस के हवाले से एटलीस्ट उसका जो लिमिट्स हैं, जो वो जैसे 153 में लिमिट है कि 100 मिलियन से ऊपर वाली जो है उन लोगों ने विद होल्डिंग टैक्स करना होता है, तो फिर उन्हीं के लिए मैंडेटरी हो जिन पे विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल है, नॉट एन एवरी पर्सन, ठीक है। तो इन चीजों के साथ जरा इनको लिंक कर दिया जाए, थोड़ी सी इसकी वर्डिंग को, इस सेक्शन की ड्राफ्टिंग को बेहतर कर दिया जाए, इसमें ये क्लैरिटी आ जाए कि इसमें जो लोकल सर्विसेज और एक्सपोर्ट कर रहा है उनके लिए क्या होगा, मिनिमम टैक्स की क्लॉज 11A में प्रॉपर एग्जेम्पशन वहां पर भी डाल दी जाए, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स में इसका प्रॉपर एग्जेम्पशन वहां पर डाल दी जाए। तो इन चीजों को थोड़ा सा लॉबिंग करके अगर ये एग्जेम्पशन रिजीम वापस नहीं आ सकता, विच वी अंडरस्टैंड ड्यू टू IMF प्रेशर्स शायद ना आए, तो इस रिजीम को मोर डाइजेस्टेबल बना दिया जाए। जी सैफुद्दीन साहब, काफी लोगों के सवाल असल में आ रहे हैं क्योंकि a lot of people have joined a bit late। उनका सवाल ये आ रहा है कि जो मुसलसल बात हो रही है, जो शुरू में मैंने जिक्र किया था कि 4 कंडीशंस कौन सी हैं, तो दोबारा से अगर बता सकें। सॉरी, आई एम आस्किंग अगेन क्योंकि काफी सारे लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं? 4 कंडीशंस हैं। एक तो ये आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। दूसरी, एक क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है आपने, ठीक है। तीसरी, आपने सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। ये फाइलिंग की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। और चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि जिसका आपने टैक्स विदहोल्ड करना है वो प्रॉपर्ली विदहोल्ड करना है, सैलरीज पर, रेंट पर, गुड्स पर, सर्विसेज पर। तो ये 4 रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करेंगे तो फिर आपका 100% रिजीम इंटैक्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जी अच्छा, ये खिलजी बताएं। साहब, जी जी, खिलजी नसीर साहब। सॉरी शाहिद, एक सवाल जो बड़े अरसे से उस पर कंफ्यूजन्स हैं, मे बी टेकिंग लिबर्टी ऑफ दिस सेशन, मे बी वी कैन रिक्वेस्ट खिलजी साहब एंड सादिया टू give a little bit clarity on that also. What is the status of freelancers as of now? Because they are not companies, they are individuals. So what is their treatment? I mean, are they subject to tax और वो नहीं है, या है तो कैसे है? कोई उसका रिटर्न है? Because ये पिछले दिनों कुछ टैक्स वो उनको भी ट्रैक करना शुरू किया है, 60-70,000 के जी क्या वो डिटेक्ट किए उन्होंने। उसमें जो व्यूज लोगों का सुना है वो ये है कि जी दैट इज देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल इनकम। So as far as those individuals are resident of Pakistan, they are subject to tax, which is a very alarming situation. So what is your professional view on that? ये वो क्या है? Is it taxable? Is it exempt? सर ऐसा है कि क्लॉज 133 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल जो है ना, वो एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती है। सॉरी शरीफ साहब, इसमें खाली एक चीज हम आप ऐड कर लें। आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ है रिमोट वर्कफोर्स का, कि जिसमें कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान और उसके कुछ एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान में, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है,
द मनी कम्स इन, अब उसको वो किसी भी नाम से, वो सैलरी के नाम से या किसी नाम से आ रही होती है, उनका भी बता दें कि क्या उनके लिए इज देयर एनी चेंज इन द करंट रिजीम, या अभी उनका जैसे सेटअप चल रहा था पहले से है वो, और वो सेटअप है क्या। क्योंकि अमूमन लोगों का ये ख्याल है कि यार वो तो सब टैक्स फ्री है, अगर मुझे सैलरी बाहर से आ रही है, they don't have in so many cases people don't understand कि what is tax resident and what is income coming from outside Pakistan. इसको भी ज़रा सा क्लियर कर दीजिएगा साथ साथ ही फ्रीलांसर्स के। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें, एक फ्रीलांसर्स हैं, एक जो रिमोट वर्क के लिए उन्होंने एम्प्लॉइज यहाँ पर हायर किए हुए होते हैं। अच्छा, जो फ्रीलांसर्स का जैसे मैंने अर्ज किया कि क्लॉज 133 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल वो एग्जेम्पशन देती है हर उस एक्सपोर्ट की इनकम को विच इज विद इन द डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अब चाहे वो कोई इंडिविजुअल दे रहा है, चाहे कोई पार्टनरशिप दे रही है, चाहे कोई कंपनी दे रही है, अगर वो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं एंड इट इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान, उसके पैसे नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान में आते हैं कम से कम 80%, तो वो सबके लिए एग्जेम्प्ट है वेदर ही इज अ फ्रीलांसर और अदरवाइज। ठीक हो गया। ये जो नया रिजीम है इसमें ये 100% क्रेडिट मिलेगा उनको भी अगर वो सारी कंडीशंस मीट करते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी एग्जेम्पशन है। तो दूसरा जो आपका था पॉइंट वो इस हवाले से था कि रिमोट ये जो कंपनीज जो हैं उन्होंने कुछ एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं। अच्छा, उसमें ना थोड़ा सा डबल टैक्सेशन ट्रीटी के चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है कि आया उन लोगों की मौजूदगी की वजह से जिस एंटिटी ने अपने एम्प्लॉइज यहाँ पर रखे हुए हैं उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंस्टिट्यूट हो जाती है या नहीं होती है। कुछ टैक्स अवॉइडेंस और कुछ टैक्स प्रॉबेबली एविजन के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ना एंटिटी टू एंटिटी, अगर तो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं उससे आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं दैट इज फाइन, लेकिन अगर एम्प्लॉइज हैं और कोई वर्क फोर्सेस किस्म की है जिनके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और तो उस पे मेरा ख्याल है कि शायद कंपनी टू कंपनी केस टू केस बेसिस पर देखना पड़ेगा कि उनकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कंस्टिट्यूट हो रही या कोई और इस तरह का रिलेटेड टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं हो रही। तो मेरा इसमें ये ओपिनियन है। सादिया, ये सादिया आपके ख्याल में, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि यार ये तो एक कहीं एक ऐसा हम रास्ता तो नहीं खोल रहे कि हम बजाय से कि कंपनी पाकिस्तान में जिन कंपनीज का एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो कहेंगे भाई ठीक है पाकिस्तान का आप जो परमानेंट बात हो रही है परमानेंट स्ट्रक्चर की उसको आप बंद करें, उन्हीं एम्प्लॉइज को आप एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करें। और क्या आपके ख्याल में एक तो उससे जवाब देना जिसका भी जरा क्लेरिफाई कीजिएगा कि ये रिस्क तो नहीं खड़ा हुआ हमारे सामने। Shahzad, are you referring to any specific case where a foreign company has a back office in Pakistan and it is just a support center? नहीं, ये तो बहुत कॉमन। नहीं सादिया, सॉरी सादिया, मैं समझ गया हूँ सादिया क्या पूछना चाह रही है। मैं आपको एक यूज केस बता देता हूँ। लेट्स से गूगल एक कंपनी है आउट ऑफ सिंगापुर, they would hire let's say 5 people in Pakistan. They will be working from home and they will be receiving a monthly salary of let's say 10,000 Singapore dollar. Being a tax resident of Pakistan, they are exempt from their withholding on their salary in Singapore. So they will receive gross $10,000 here in Pakistan. Where do they stand? सब यहाँ पे केस ये जो अपैरेंटली मुझे लग रहा है ये फ्रीलांसर्स का है। मतलब मैं अपने घर में बैठ के एक कॉन्टेक्ट करती हूँ गूगल से कि मैं ये काम घर में बैठ के करूंगी और इतनी इसकी फीस आपने मुझे पे करनी है जो मेरे फला बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। आई एम अ फ्रीलांसर, नॉट एन एम्प्लॉय पर से। थोड़ा सा मतलब फर्क है सादिया। फ्रीलांसर्स काम करता है असाइनमेंट्स के ऊपर, एम्प्लॉय काम करता है फिक्स मंथली सैलरी के ऊपर। तो दोनों में ना कॉन्ट्रैक्चुअल फर्क है और जो एंगेजमेंट टर्म वो फर्क होती हैं। ये जरा सा ध्यान रखिएगा ध्यान में when you answer the question. And these international companies, they do not really engage through these kind of contracts. They usually go and hire people on employment contracts with the fixed remuneration. Yeah. ठीक है, इन दैट केस देखें सैलरी के हवाले से अब यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। आई एम अ गूगल एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एंड बीइंग पेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान इनटू माय पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और मे बी इन माय यूएई बैंक अकाउंट। लेट्स अज्यूम सैलरी के हवाले से पाकिस्तान का टैक्स लॉ ये कहता है कि सैलरी वहां पे टैक्स होगी जहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली एक्सरसाइज हो रही है। यानी इफ आई एम एक्सरसाइजिंग माय एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान,
irrespective of where I am being paid, I have to pay tax in Pakistan. हाँ, अगर मैं सपोज करें मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट हूँ और मैं एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है मेरे केस में. अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, यानी मेरा स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम है और मेरा कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में मैंने काम किया है, तो मेरी फिर एज ए नॉन रेजिडेंट से वही इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी जो मैंने पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट करके अर्न किया. बट इन एनी केस, to the extent I'm exercising my employment in Pakistan, whether I am a resident or a non-resident, I have to pay tax in Pakistan to that portion of my income which pertains to my exercise of employment in Pakistan. There is no exception. इसमें चूंकि अब यहाँ पे ना देखिए शहजाद, यहाँ पे एक आपसे टैक्स का वॉलंटरी कंप्लायंस एक्सपेक्ट कर रहा है. लाइक देयर इज नो विदहोल्डिंग एज सच. आपको बाहर से पैसे आए और आपकी उस पर विदहोल्डिंग नहीं हुई. एक परसेप्शन ये भी है कि एक सेक्शन 111 है जो आपको इम्यूनिटी देता है, और ये एक परसेप्शन है कि आपके पास बाहर से पैसे आए तो आपके पास PRCs अगर है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, बैंकिंग चैनल का एविडेंस है, तो एक्चुअली यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दिस रिसीट व्हिच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान. देयर इज अ कॉमन परसेप्शन ऑन दैट. बट लेट मी क्लैरिफाई कि सेक्शन 111 जो है, 111 जो हम कहते हैं इम्यूनिटी का जो सेक्शन है, दिस इज नॉट इक्वल टू एग्जेम्पशन, दिस इज नॉट इक्वल टू ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन. वो मैक्सिमम ये कहता है कि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू फॉरेन रेमिटेंसेस मंगवा रहे हैं तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, बट इट डज नॉट मीन कि आपको कोई ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दिया हमने. लाइक इफ दिस इज सैलरी इनकम, इफ यू हैव अर्नड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, देन यू हैव टू पे टैक्स इन पाकिस्तान ऑन दिस इनकम. और इवन वो 111 की जो इम्यूनिटी है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, वो भी वक्त के साथ उन्होंने काफी कम कर दिया है. उसको भी उन्होंने लिमिट कर दिया कि 5 मिलियन से नीचे अगर रिसीट होगी तो चले हम आपसे नहीं पूछेंगे सोर्स, बट स्टिल उससे ऊपर होगी तो हम आपसे वो उसका सोर्स क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट्स आ रहे हैं 5 मिलियन से ऊपर के हैं साल के, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये क्या है, तो ये आपकी इनकम में हम ऐड करेंगे और आपसे इसका पूरा टैक्स रिकवर करेंगे. तो आपसे सोर्स से पूछा जाएगा और आपको उस पर कंसीलमेंट ऑफ इनकम की 100% पेनल्टी भी लगेगी. तो प्रैक्टिकली अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, बाहर से पैसे आते हैं, जैसे हमारा अपना केस है KPMG का, हम यहाँ बैठ के कई मेंबर फर्म्स के लिए काम करते हैं, बाहर से हमें रिसीट्स होती है, तो दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट पर से. वी हैव टू पे टैक्स ऑन दैट, बीइंग पाकिस्तान रेजिडेंट एंटिटी और पाकिस्तान रेजिडेंट इंडिविजुअल. तो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इनकम के डिस्क्लोजर्स की, राइट, और उस पर टैक्स देने की, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ऑब्वियसली मेरे इल्म में नहीं था कि अगर आप टैक्स नॉन रेजिडेंट हैं एंड लेट्स यू स्पेंड 100 डेज इन पाकिस्तान, तो आप प्रोपोर्शन टू 100 डेज टैक्स पे करेंगे. आई थॉट के It's proportion to exercise of your employment in Pakistan. यानी आपने अगर 100 दिन पाकिस्तान में जॉब की, बाकी दिन आप पाकिस्तान से बाहर रहे, तो आप 100 दिन की हद तक फिर आप टैक्स देंगे. अच्छा, ये मेरे लिए जो है आई डोंट नो, थोड़ा सा मेरा तो ये ख्याल था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं टैक्स के, तो फिर आपका जो है वो टैक्स इनकम टैक्स आप पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप तो काम एक्सपोर्ट्स के लिए कर रहे थे. दिस इज इंटरेस्टिंग. ठीक. एक्चुअली फिर वो लॉ जो है सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 है जो बाइफरकेट करता है. वो कहता है कि अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी और सैलरी पाकिस्तान सोर्स हो जाती है अगर आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ करते हैं. और अगर रेजिडेंट है तो फिर तो इन एनी केस दोनों इनकम टैक्सेबल होगी, पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी. और तो फॉरेन सोर्स का फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है अगर आपने फॉरेन जुरिसडिक्शन में पे किया. जी नसीर साहब, हम आप पहले ही बड़ा एक चल रहा है प्रॉब्लम जिसका आपने तस्करा भी किया था कि सेल्स टैक्स की जो इंटरप्रिटेशन है कि IT सर्विसेज किस बला का नाम है और IT किसे कहते हैं. तो आपके ख्याल में ये जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है और एक्सपोर्टर्स को मैंडेट किया जा रहा है कि आपने उसको रिटर्न फाइल करना है, और जाहिर है उसके बाद हमें पता है कि प्रोविंसेस तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग आफ्टर द कंपनीज एंड सेंडिंग नोटिसेस. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट पे सेल्स टैक्स का रास्ता तो नहीं खुल जाएगा परमानेंट हो जाने का, जिन्होंने पहले कुछ कोशिश की हुई है प्रोविंसेस ने? डू यू फियर कि ये चीज दिस विल इवेंचुअली लीड टू ओवर द टाइम अ परमानेंट सेल्स टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स? देखें, वो अभी जो सादिया ने जो बात की है, दैट्स आल्सो ए काइंड ऑफ ए लिटिल बॉम्बशेल ऑन अस के सर्विसेज में की एक्सपोर्ट के ऊपर देयर इज नो क्लैरिटी. गुड्स के ऊपर तो उन्होंने क्लियरली क्या दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स वुड नॉट अप्लाई, और सर्विसेज के ऊपर सिंस इट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट सो दे मे और दे मे नॉट. बट अभी तक जो हमारे इंटरेक्शंस हुए हैं दे हैव लार्जली एक्सेप्टेड कि जी आप मुझे ये बताएं, मैं एक बंदे को न्यूयॉर्क में
since GST is a consumption tax, whether for out of selling goods or services. So, I mean, the person sitting in New York who's buying my services is not going to pay consumption tax here. He will pay in New York State. So, I mean, how can you impose? It is unconstitutional internationally. I don't know, मैंने तो नहीं देखा कि मैंने कोई कंसल्टिंग किसी से ली है या कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदा है तो मुझे वो GST आयरलैंड से लग के आया हो या VAT वहां से लग के आया हो. उनकी नेट प्राइस आती है क्रॉस बॉर्डर जो होती है, एंड वी पे आउट हियर इफ देयर इज ए मैकेनिज्म व्हिच इज क्रॉस बॉर्डर. तो फिर वो फेडरल वो आ जाता है ना, लाइक कस्टम्स एंड ऑल दैट. सो उसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल में द होल कंफ्यूजन इज द फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट. पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं होता है कि गुड्स जो है वो फेडरल के पास है और सर्विसेज स्टेट्स के पास हैं. गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑलवेज ए स्टेट सब्जेक्ट. तो वो जी वो मेरा ख्याल है इन्होंने किया था कि जी आस्ता आस्ता करते हैं, पहले गुड्स करें फिर गुड्स भी दे देंगे, लेकिन वो बात बीच में भूल ही गए कि वो 18th अमेंडमेंट को आगे भी लेके जाना था और उसको कोई कंक्लूसिव उसको शेप देनी थी. गुड्स और सर्विसेज it has to be a state prerogative या उनका वो बनता है jurisdiction. But I think इसको आप लोग जो है ना, do you people advocate these things in order to reduce complexities, या आप enjoy करते हैं कि ठीक है complexities रहें और हमारी फीसें बने? complexities की आपने बात की, मैं आपको frankly बताऊं, इस वक्त जो provincial sales tax laws हैं जी वो इस तरह एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो उनके प्रीएम्बल है वो स्टार्ट इस तरह होते हैं कि दिस इज द सेल्स टैक्स लॉ ऑन ओरिजिनेशन ऑफ सर्विसेज. ओरिजिनेशन, टेंडरिंग, प्रोविजन, टर्मिनेशन, प्रॉमिस में ओरिजिनेट भी हो और टर्मिनेट भी हो, दोनों सूरत में आप हमें टैक्स दें. तो उसमें होता ये है कि पंजाब और सिंध और सारे प्रोविंसेस के सेल्स टैक्स लॉज आपस में ओरिजिनेट ओवरलैप कर रहे हैं. लाइक टेलीकॉम सर्विस है, जैसे अब मैंने आपको कॉल किया, आप कराची बैठे हैं, सर्विस ओरिजिनेट हो रही इस्लामाबाद से, टर्मिनेट हो रही कराची में, तो प्रोविंस उस पे सेल्स टैक्स लेगा. सेल्स टैक्स तो उस पे चार्ज होता है. राइट. उस पे इतने डिस्प्यूट्स हैं और अल्टीमेटली वो सेटल किया गया कि जी ओरिजिनेशन पे टेलीकॉम सेक्टर जो है ना इस जमा करा रहा है, एग्री करके चारों प्रोविंसेस से कि जी हम ओरिजिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, जहां से कॉल जाएगी हम वहां उस प्रोविंस को टैक्स देंगे, हम टर्मिनेशन नहीं दे सकते दोबारा टैक्स. तो इस पर इतनी ओवरलैप सिचुएशन है और इतनी इसमें कॉम्प्लिकेशन है सेल्स टैक्स के लॉज के अंदर, ये वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे और प्रैक्टिस की बेसिस पे चल रहे हैं. अगर आप स्ट्रिक्ट लॉ को इंटरप्रेट करें और उसको उसकी लिटरल मीनिंग्स पे जाएं तो उसमें बहुत एम्बिग्विटीज है, बहुत इश्यूज है. अब अगर थोड़ा सा हम चाहेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा क्लोजर की तरफ लेकर आते हैं इस अपने एक्साइटिंग डिस्कशन को. One, this is clearly a writing on the wall कि the IT sector is going to face very hard times in the next few months, because those who actually had little to do with FBR and the provincial tax authorities, अब उनको जो है they will be at the mercy of the notices and the interpretation of what is IT services, what is export. क्योंकि नसीर साहब और हम काफ़ी भुगत चुके हैं चीज़ें ये वाली पिछले 10-20 सालों के अंदर, तो उसके सिलसिले में हमें ये फियर है कि चीज़ होने वाली. आपके ख्याल में सादिया, मैं फिर पूछूंगा शरीफ साहब से भी और नसीर साहब से भी, क्या ऐसी कोई प्रेसिडेंस है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया हो, तो 90 दिन इम्प्लीमेंट हुआ हो, और उसके बाद वो रोल बैक हो गया हो बेस्ड ऑन कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आपके ख्याल में, नोइंग के इसके हैजर्ड्स में नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल में कोई चांसेस हैं बेस्ड ऑन जो एक्सपीरियंस के ये रोल बैक हो जाए, या हो सकता है आपकी मुराद है ये बिल्कुल ये खत्म हो जाए, एक्सटेंड परमानेंट ना हो ये, एंड 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट ना हो? देखिए, अगर आप लॉबी करें तो ये पॉसिबल है कि इम्प्लीमेंटेशन की डेट आगे हो जाए. आप कहें कि जी हमें टाइम दिया जाए, ऑब्वियसली ये आपकी बड़ी जेन्युइन डिमांड होगी कि आप टाइम मांगे, और एक्चुअली होता भी इसी तरह है. इन्होंने एनजीओ सेक्टर को भी टाइम दिया था कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करने में, तो आप टाइम मांग सकते हैं, बट बिल्कुल रोल बैक हो जाए और एग्जम्पशन रिस्टोर हो जाए, आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. वो मुश्किल होगा. एक सवाल थोड़ा, हाँ जी सर जी, एक सवाल मुझे बताइए, चले आपने वो एनपीओ सेक्टर का वो कर दिए,
मुझे एक्सपोर्ट्स में बताइए कि कोई और सेक्टर है जिसपे ये इस रजीम में आया हो। एक्सपोर्ट में देयर आर 72 एक्सपोर्ट में तो नहीं, एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट देयर आर 72 एक्सपोर्ट सेक्टर्स। या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो इन एनी केस है ही जीरो रेटेड और इनकम टैक्स में 1% पे। उस पे तो शुरू से एक रजीम बड़ा क्लियर चल रहा है कि सेल्स टैक्स में जीरो रेट, नो सेल्स टैक्स, और इनकम टैक्स में 1% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स यू हैव टू पे। सिंपल एज दैट। राइट। कोई एक्सपेंसेस नहीं आपको मिलते और कोई आपने कोई विदहोल्डिंग कंप्लायंस के भी उसके डिफरेंट रूल्स हैं, तो आपने 1% देना है, दैट इज योर फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसमें कोई टैक्स क्रेडिट का इशू नहीं है। So गुड्स की हद तक वी आर क्लियर। सर्विसेज की हद तक ये हाँ। पहला है जिसपे उन्होंने बाकायदा वो डाली है, प्रोविजन डाली है। अदरवाइज तो सर्विसेज के वाले से शहजाद से डिस्कशन हो रही थी इससे पहले कि कुछ प्रोविजंस थी लॉ के अंदर, वो भी उन्होंने खत्म कर दी है कि अगर आप बाहर जाकर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो आपकी जो रेट लगता था वो नॉर्मल रेट से 50% रिड्यूस होकर लगता था। कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशंस थी, वो खत्म कर दी हैं ऑल टुगेदर। रॉयल्टी के ऊपर कुछ एग्जम्पशंस थी कि आपका पेटेंट और कॉपीराइट बाहर यूज हो रहा है तो आपको फिर उस पर पैसे बाहर से आ रहे हैं तो उस पर एग्जाम्पशन थी, अब वो भी खत्म कर दी है ऑल टुगेदर उन्होंने। अब सिर्फ उन्होंने ये टैक्स क्रेडिट की रजीम है जो इस एज ऑफ द स्टेट एप्लीकेबल है और जिसको हमने एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करके और उसी हिसाब से लेके चलना है। या तो शहजाद ये देखें, आई मीन दिस इज ए क्लियर कॉन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। एक तरफ तो होता है कि हमने इस मुल्क की अपनी इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी बनाना है, तो नॉलेज इकोनॉमी में जो चीजें हैं वो तो आप कैप कर रहे हैं। जो गुड्स एग्रेरियन बेस्ड हमारी जो है वेरी लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर वो है। नॉलेज इकोनॉमी में तो ऑफ कोर्स सर्विसेज ही है ना, नॉलेज ही है विच और आईपी है विच यू विल बी एक्सपोर्टिंग। और जो everyone knows कि what is the delta, the average yield per head count in textile worker is $600 and average yield of IT services export is $25,000. Look at the delta. And you are actually attacking on कि यार ये जो knowledge economy तो बनना नहीं चाहिए इनको. So that is a debate we should be doing with the policy makers. आप अगर ऐसे देखें तो आप इसको सॉरी शहजाद, इसमें एक जस्ट एक सजेशन नसीम साहब की बात से मुझे ख्याल है कि कैन यू लॉबी विद एफपीआर ऑन द ग्राउंड कि आप गुड्स को अगर 1% कर रहे हैं तो हमारे लिए 1% क्यों नहीं? अभी मैं यही पूछने वाला था, नसीम साहब पूछने वाला था कि एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप टैक्स क्रेडिट रिजीम को चाहेंगे एक्सटेंड हो जाए बियॉन्ड 30 जून या इसको आप रिप्लेस कर लेंगे मैचिंग यू नो द अदर सेक्टर्स एक्सपोर्ट टैक्स रिजीम 1% वाली करंट वैल्यू, आपके ख्याल में अगर यही ऑप्शन हो तो आप किसे पे करेंगे? We don't mind. देखें, like I said कि IT sector, I'm not saying that it's a very highly profitable sector. ये ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर ये गलत फहमी है लोगों को तो उठा के देख लें, टाटा कंसल्टिंग की एनुअल रिपोर्ट्स उठा के देख लें, एक्सेंचर की देख लें जो कि ग्लोबल कंपनीज हैं, विप्रो की उठा के देख लें, यू विल गेट टू नो कि उनका नेट प्रॉफिट्स हैं क्या। इट्स कोई इतनी सब्सटेंशियल नहीं है कि वो जो है ना को 100% या 50% वो नेट प्रॉफिट्स इसमें बनते हैं। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव स्पेस। तो वो मतलब कि वी डोंट माइंड 1% हो जाए। एज फार एज दिस एडिशनल वर्क, आई मीन वो हमें 2.5% अगर कंप्लायंस पे खर्च करना है, विल बी बेटर ऑफ 1% हमारी फुल एंड फाइनल लायबिलिटी करके आप ले लें यार, कोई मसला नहीं। या इसमें आपकी कंप्लायंस जो है वो खत्म हो जाएंगी। You will have to pay tax. There won't be any credit per se, but at least this compliances will not be there. Our tax office के चक्कर, audit और वो exactly वो खत्म हो जाएगा। It's a, you will spare lot of time. जैसे मैं नसीर साहब को फिर इल्म इस बात का कि we do keep talking about बांग्लादेश कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, but very few of us acknowledge कि बांग्लादेश अपनी IT एक्सपोर्टर्स को 10% कैश इंसेंटिव देता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर while not taxing them. तो we actually are saying कि हम उनसे perception तो खैर पहले ही पीछे हैं, लेकिन फाइनेंस के कॉस्ट परस्पेक्टिव we are now going to be 12% more expensive against against similar company operating out of Bangladesh. अगर किसी कंपनी ने अपना ऑफिस सेटअप करना है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, तो हमें अब इल्म होना चाहिए कि what will go through their mind. जी शरीफुद्दीन खिलजी साहब, आप बताएं आपके ख्याल में आपकी गवर्नमेंट के लिए क्या एडवाइस होगी
knowing Pakistani economy, knowing IT sector, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए which will eventually benefit the government, you know, without really rocking the boat. जी, आपकी मेरी आवाज आ रही है खिलजी साहब? जी, जैसे मैं अगर आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि मैं एक ही हम वेवलेंथ पर हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अपने सेक्टर को बचाने के लिए और साथ साथ कुछ रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। ख्याल है इसी तरह का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन। जी 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 जी, एक तो जो कर चुके हैं ना, मतलब आगे आपके ख्याल में व्हाट आर द स्टेप्स दे शुड बी, क्योंकि ज़ाहिर आप एक्सपर्ट बता सकते हैं कि यार ये जैसे अभी बात हुई कि यार ये आप इस रीजन को ख़त्म कर दें, क्योंकि इस रीजन की कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, और जो क्योंकि एक सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो एक उनका मसला ये, आपके ख्याल में आपको क्या मसला होगा? जी, अच्छा, एक तो जैसे नसीर साहब ने फरमाया कि अगर जैसे 1% कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्स की सूरत में इंक्रीज होती है तो प्रोबेबली दैट इज मोर एक्सेप्टेबल टू द सेक्टर एज कंपेयर टू गोइंग इनटू अ वेरी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिजीम। ठीक है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने अभी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था अक्टूबर में, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का जो लॉ लेके आए थे, लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा अभी उस लॉ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का लॉ तो ले आई, लेकिन उसमें जो एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं वो एग्जेम्पशंस अभी तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं लेके आए। ठीक है, तो जब तक वो एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं आएंगे उस वक्त तक वो एग्जेम्पशंस लार्जली इनफेक्टिव रहेंगी। तो एक गवर्नमेंट के लिए ये है कि आप साथ ये, अगर से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप FTR का ये 1% वाला कानून लेके आना चाहते हैं, तो साथ लोगों को एक ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं इनको जल्दी डेवलप करें, उनसे रिलेटेड जो एग्जेम्पशंस हैं उन एग्जेम्पशंस को फौरन इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो हमारी छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो उन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, जैसे अभी भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउस ये STPs एस्टेब्लिश हुए हुए ना, उन्हीं को आप डिक्लेयर कर दें और वहाँ पे एग्जेम्पशंस दे दें, तो वहाँ पे बेशुमार फ्रीलांसर्स अभी भी बैठ के काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट इन तमाम हैसल से और इस रिजीम से सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को डेवलप करना जो है मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप होगा, और उसकी एग्जेम्पशंस को इफेक्टिव बनाना एक अच्छा स्टेप होगा फॉर द सेक्टर एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, as we are now towards the closure of the session, and I want to thank you all of you. मैं थोड़ा सा एक recap कर देता हूँ अपनी main discussions का, कि this regime IT exports is tax exempted till June 30th 2025 through a presidential ordinance. इस रिजीम को रिप्लेस कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 22 मार्च 2021 with tax credit system. In a tax credit system, you don't have to pay any tax upfront per se, but you have to file income tax return, you have to file a sales tax return, as well as you have to be very stringent about withholding tax regime and collection and its documentation. और जो एक और 80% की जो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स के साथ आपने इसको फॉलो करना है, जिसके लिए द कंपनीज नाउ मस्ट हैव सम टैक्स कंसल्टेंट और एन एक्सपर्ट टैक्स एम्प्लॉई विद देम, ताकि इन चीज़ों को वो उसको कंप्लाई कर सकें, उसको अपनी बुक्स को प्रॉपरली वो मेंटेन कर सकें, क्योंकि इस साल में 21 मार्च तक टैक्स एग्जेम्पशन है और 22 मार्च से 30 जून तक टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। इट्स अ बिट अनक्लियर कि क्या कुछ चीज़ें पूरे साल की फाइल करनी होंगी रिटर्न में या कुछ अर्से करनी होंगी, बट दिस इज येट टू बी सीन। दूसरी बात यह है कि दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये एक क्योंकि एक कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज की फॉर एनी इन्वेस्टमेंट टू कम एंड फॉर एनी इकोनॉमी टू फ्लरिश. This has come as a shocker, and which is very unfortunate decision
that जिस नसीर साहब ने कहा कि a sector which is growing 40-45% year on year, and the sector which is key to the digitization of Pakistan. Government is talking about corruption-free Pakistan. It's not possible without digitization and data led decisioning. और एक ऐसा सेक्टर जो कि डोमेस्टिक डिजिटाइजेशन के लिए की है, जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए की है, फॉरेक्स फॉरेन रिजर्व्स के लिए की है, उसके ऊपर एंड दिस इज द ओनली एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ 72 सेक्टर जिसको वो चेरी पिक करके सिलेक्ट किया गया है। और ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट पे डिपेंड नहीं करता। इट्स अ वेरी डाइवर्स सेक्टर जिसमें बेशुमार एंटरप्रेन्योरल हमें चीज़ नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट में नज़र आ रही है। वी हैव $78 मिलियन प्लस की फॉरेन की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और उसके साथ ये एक चीज़ हो रही है जिसका वी फियर, हमारा एनालिसिस कहता है कि जो प्रॉमिसिंग था कि हम $5 बिलियन मीट कर लेंगे 3 साल में 2023 तक, there is a very serious apprehension around it कि हमारे जितने फोरकास्ट थे सॉफ्टवेयर और IT एक्सपोर्ट्स के, वो अब काफ़ी जो है वो हाई रिस्क पे चले गए हैं कि वो कैसे हो सकेगा। और उसके अलावा सर ये है कि पाकिस्तान में हम लोग अभी ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस इस क्योंकि ऑर्डिनेंस की लाइफ सिर्फ 90 डेज होती है, तो इसको जो है कैबिनेट वगैरह से इसको अप्रूव कराना पड़ेगा ताकि ये फाइनेंस बिल के तौर पे आ सके और 1 जुलाई से फिर ये इफेक्ट हो सके। सो देयर इज स्टिल अ चांस बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू सर्टेन स्टेजेस। एंड पाशा तो इस वक्त बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहा है वट एवर डोर्स इट कैन नॉक, sensitizing them कि this we actually are adventuring into the wrong path। इसी तरीके से बाकी जो लोग हमें सुन सकते हैं हमें बाद में सुनेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को आप हाईलाइट करें, because social media has a lot of power and this has to be acknowledged to businesses, the youth of Pakistan, the freelancers, the entrepreneurs and government, के better sense must prevail and there has to be a better regime for documentation of economy and for correction of tax। इसके साथ मैं चाहूँगा सारी एक रिक्वेस्ट करना कि हम लोग इसके बाद एक छोटी सी रिपोर्ट कंपाइल करेंगे बेस्ड ऑन दिस कन्वर्सेशन टुडे, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हमने जवाब दिए हैं लेकिन आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड देम। सो दिस विल बिकम अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट। जो स्टार कंडीशन कौन सी हैं, कुछ रिस्क की हमने बात की थी, बहुत सारे रिस्क की कि जी वो जो टैक्स का जो इंस्पेक्टर होगा FBR का, उसकी मर्जी होगी, अगर उसको नॉन कंप्लायंस मिलता है तो ही मे जस्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रिप यू ऑफ द टैक्स रिजीम, टैक्स रिजीम और स्टैंडर्ड टैक्स पे आपको डाल दे। तो वी विल क्रिएट अ स्मॉल रिपोर्ट which will publish from Pasha session, and I want to thank you Sadia, Naseer Saab, Saifuddin, Khilji Saab. You have really been very very helpful in clarifying a lot of tough questions क्योंकि uncertainty बहुत ज़्यादा है। I also want to acknowledge the efforts of Sameem Rajani, Talha bin Afzal, Alina, Numan, जो कि पीछे बैठ के सारी की सारी ये वेबिनार्स को अरेंज करते हैं, and everybody else who is attending today। I really hope and pray that Pakistan economy continues to grow and we have the right decision been taken in the next 3 months। And with that, I want to say thank you very much. Thank you. Thank you very much, Shahzad. It's a pleasure talking to all of you. Thank you. Yes, Same here. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum.